નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકમંચમાં આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે ભારતની જે સુરક્ષા એ અંદરની સુરક્ષા હોય કે પછી બોર્ડરની સુરક્ષા હોય, એ ફિલ્ડ માટે એક દુઃખદ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે જેમાં તમિલનાડુમાં કન્નૂરમાં આર્મીનું એક હેલિકોપ્ટર જે રવાના થઈ રહ્યું હતું તે ક્રેશ થયું હતું, એટલે કે એક દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। જેમાં દુઃખદ સમાચાર એ આપણને મળી રહ્યા છે કે CDS તરીકે જે જનરલ બિપિન રાવત છે તેઓનું મૃત્યુ થયું છે તેવા સમાચાર મળી રહ્યા છે। તેમના પત્નીનું પણ મૃત્યુ થયું છે। આ હેલિકોપ્ટરમાં 14 લોકો સવાર હતા અને 14 લોકોમાં એક તો CDS બિપિન રાવત અને તેમના પત્ની હતા, સાથે ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સવાર હતા અને 14 લોકોના મૃત્યુ થયા તેવા સમાચાર પ્રાપ્ત થયા। ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના જોવા મળી રહી તેની પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને એક રીતે બિપિન રાવતને શ્રદ્ધાંજલિ પણ પાઠવી રહ્યા છે। સમગ્ર દેશની જે સુરક્ષાની વાત કરવામાં આવે છે, સુરક્ષાના હેડ તરીકે બિપિન રાવત પોતાની જવાબદારી નિભાવતા હતા અને આપણે જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે વર્ષો બાદ આપણને CDSની નિયુક્તિ જોવા મળતી હતી, કારણ કે ત્રણ જે સુરક્ષા પાંખ છે આપણી, એ ત્રણ પાંખનું સંકલન કરવા માટેની એક જવાબદારી ઊભી કરવામાં આવી હતી। અને જવાબદારીના પહેલાં જે વ્યક્તિ જોવા મળ્યા હતા તે છે બિપિન રાવત, કે તેઓ પહેલાં CDS તરીકે જોવા મળે કે જે જવાબદારી સંભાળતા હતા અને ત્રણ જે સુરક્ષા પાંખ છે તેનું સંકલન કરવાની કામગીરી મુખ્યત્વે જોવા મળતી હતી આ CDSની। બિપિન રાવત જે છે, જેઓ સુરક્ષાના હેડ કહેવાતા હોય ને તેઓનું મૃત્યુ થયું છે આ દુર્ઘટનાની અંદર। ભૂતકાળમાં ઘણા આવા બધા આપણને એરફોર્સના જે એરક્રાફ્ટ્સ કહેવાય છે એ એરક્રાફ્ટ્સના દુર્ઘટના કે અકસ્માત થતા જોવા મળ્યા છે અને આજે પણ આ પ્રકારની ઘટના જોવા મળી છે કે જેમાં બિપિન રાવતનું મૃત્યુ થયું હોય તેવા સમાચાર અત્યાર સુધીમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે। અને એ પણ માહિતી મળી રહી છે કે આવતીકાલે સરકાર દ્વારા પણ આ ઘટના જે બની છે તેની પર સંસદમાં નિવેદન કરવામાં આવશે અને સાથે સાથે રક્ષામંત્રીનું ખુદ પોતાનું પણ નિવેદન જોવા મળી શકે છે। તો ચર્ચા કરી રહ્યા છે, મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે મેજર આર્મી રણજીત સિન્હા અને કમાન્ડર નૌસેના એવા સંદીપ સિન્હા જોડાયા છે। આ બંનેનું સ્વાગત છે ચर्चा। आपने सुना कि बिपिन रावत CDS जो है उनकी डेथ हो गई। तो पहले ये समाचार आया था कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जी एयरफोर्स का, जिसमें CDS साहब और उनके स्टाफ, उनकी फैमिली वो जा रहे थे जी जो हैं। और उसके बाद ये पता कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या कैजुअलिटी हुई है या क्या उसका रिजल्ट रहा है। तो हम सब एक्चुअली आई थिंक जहां तक मैं समझता हूँ पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा था कि सभी लोग सकुशल हो उसमें और वापस आ जाएं, जी आराम से, किसी को हताहत ना हो। जी लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हर तरह की खबरें आ रही थी। फिर शाम के समय जब न्यूज़ मिला कि हमारे जो CDS हैं जनरल बिपिन रावत जी, उनका देहांत हो गया। टोटल 14 में से 13 लोग जो है तो ये सचमुच एक बहुत ही दुखद घटना है जी पूरे देश के लिए, पूरे डिफेंस स्टाफ के लिए, सभी के लिए, क्योंकि एक हमारे पहले CDS थे हाँ वो। बिल्कुल। और ऐसा हो जाना, वो भी अकस्मात, ये काफी एक बहुत बड़ा झटका है और एक बहुत बड़ा धक्का लगा। जी 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 संदीप जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर, जैसे आपने सुना इस तरह की जब दुर्घटना बनी है, इसके बाद आपको जब जानने को पता चला ऐसा कि बिपिन रावत भी, उनकी भी देहांत हो गई है, क्या रिएक्शन आपका? जी, जैसा कि रंजीत ने कहा कि ये बहुत ही दुखद समाचार था। हालांकि हमें दोपहर को ही पता लग गया था कि एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना घटी है जी और उसमें CDS भी हमारे थे। और हमें शुरू में यही लग रहा था कि कुछ खबर आएगी ऐसी जो बोले कि सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे जैसे जी रणजीत जी, आप संदीप जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। संदीप जी, जी। आ रही है आवाज? जी बोलिए। जी आ रही है। बोलिए। हाँ, माफ कीजिएगा। तो हमें यही लग रहा था कि कुछ अच्छी समाचार सुनने को मिलेंगे कि कोई हताहत नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे कि समय बीता और ये बुरी खबर आने लगी और हमें शाम को तकरीबन 6 बजे या 6 बज के कुछ मिनटों बाद पता लगा कि CDS साहब का निधन हो गया है। और ये काफी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि जनरल रावत हमारे सबसे प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और उनका भारतीय सेनाओं के परिवर्तन में बहुत ही बड़ी जवाबदारी रही है।
जी और जी जी ये देश के लिए और खासकर उनके परिवार के लिए और भी अन्य परिवारों के लिए जिनके बेटे और बेटियां थी इस जी जहाज में, हेलीकॉप्टर में, उनके लिए बहुत ही दुख का समय है। और हम परमात्मा से यही चाहेंगे कि उनको शक्ति और संयम प्रदान करे। जी। रंजीत जी, कितनी कमी रहेगी जब ये सीडीएस नहीं रहे हमारे बीच में, तो तीनों तीन पाक के लिए, तीनों तीन विंग के लिए कितनी कमी रहेगी? अ, अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो तीनों विंग के हेड थे। जी जी। हमारे हमारे मतलब वो बोलते हैं जो परिवार का सबसे बड़ा होता है, यस। डिफेंस फोर्सेस के लिए वो एक परिवार के सबसे बड़े सदस्य के तौर पे थे, और सब लोग जी उनकी तरफ देखते थे गाइडेंस के लिए, डिसीजंस के लिए, और जी अच्छी समझ के लिए। तो एक एक तरीके से उनका लॉस एक बहुत बहुत बड़ा मायने रखेगा हम्म। पूरे डिफेंस फोर्सेस के लिए। जो वो जैसा कमांडर संदीप बता रहे थे कि उन्होंने जी काफी चेंज के लिए वो कोशिश कर रहे थे और जी। कार्रवाई कर रहे थे, तो उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। बराबर। संदीप जी, क्या वजह लग रही है आपको? कोई ऐसा लग रहा है वजह कि जिसकी वजह से ये दुर्घटना बनी है, एक्सीडेंट हुआ है? क्या आपको लग रहा है कि टेक्निकल एरर हो सकती है इसके अंदर, या कोई एटमॉस्फेयर के मौसम की भी कोई एरर हो सकती है, ऐसा लग रहा है संदीप जी? जी, ऐसी दुर्घटनाओं में हम्म। बहुत सारे अ, कारण हो सकते हैं। जी मौसम एक है, जी तकनीकी फेलियर एक और हो सकता है, जी और असंभवता किसी चीज की नहीं होती है। और जी जी। मेरे इस ख्याल से एविएशन सेक्टर में और खासकर सेनाओं की जांचों में हम्म। हर पहलू को देखकर ही इंक्वायरी होती है, और जो जी जी। जांच कमेटी बिठाई गई है, मेरे यस यस। ख्याल से वो अपना काम अभी तक शुरू कर चुकी होगी। बिल्कुल। और वहीं से और उन्हीं से हमें पता लगेगा कि यस यस यस। असल कारण क्या था इस जी दुर्घटना रणजीत का। जी, कोई गुंजाइश लग रही है टेक्निकल वजह होने की? कोई गुंजाइश आपको लग रही है क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि ये जो MI-17V5 है, ये जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही अद्भुत हेलीकॉप्टर है, कि जिसके अंदर ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये खराब मौसम में भी काम करता है। तो टेक्निकल वजह होने की कोई गुंजाइश आपको लग रही है क्या? सर, ये जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर है, जी ये एक बहुत ही, जैसा आपने बोला, ये बहुत ही मजबूत, बहुत ही प्रूवन जी जी। प्लेटफॉर्म जो हम बोलते हैं, बहुत ही प्रूवन बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है। इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे अन्य देश में भी इसका जी। इस्तेमाल हो रहा है और बहुत अरसे से होता आ रहा है। यस। और ये जो V5 मॉडल है, ये सबसे लेटेस्ट अपग्रेड के साथ है, जो हम्म। बैड वेदर वगैरह कभी भी उड़ सकता है। जी जी जी। अच्छे एक्सपीरियंस, द पायलट्स भी एक्सपीरियंस, वो अच्छे कार्रवाई कर सकते हैं। यस। कि एक्चुअल क्या, एंड ऑफ द डे ये मशीन है, जी तो मशीन में तो कुछ भी तकनीकी खराबी या कुछ भी हो सकता है। जी जी लेकिन जी। कुछ भी बोलना अभी मतलब सही बात नहीं होगी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या हुआ था, क्या हालात थे, किन जी। हालातों में ये सब कार्रवाई हुई है। हाँ, हम्म एक चीज जरूर है कि हमारे देश में ये अच्छी जांच होगी और जी। इसका सच जरूर सामने आएगा। यस यस यस। हुआ था। अच्छा संदीप जी, मेरा सवाल ये है कि सीडीएस की जरूरत क्या पड़ी थी देश को? देश में ऐसे कैसे हालात थे कि तीनों तीन विंग को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ी? क्या पहले पहले हम नहीं करते थे कोऑर्डिनेट क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जी। कोऑर्डिनेशन सेना के हर एक एक्टिविटी में शुरू से ही रहा है। बिल्कुल। ये है कि वर्तमान के जो चैलेंजेस हैं जी और जो आगे जाके हमारे भविष्य में चैलेंजेस होंगे, जी इनमें काफी अंतर है। जी 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 तो जो वर्तमान के चैलेंजेस हैं, जी। इसमें इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है आज के जी कंपैरिजन में भी। बिल्कुल। ठीक है। अब आप देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा खतरा है, जी जी जी। हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। पूरी यदि दुनिया के आप लिए। कंपनी हो या आप सरकार हो जी जी या जी। कोई आर्म फोर्सेस हो, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन से साइबर सिक्योरिटी आ सकता है या किसी एक सेना को इफेक्ट कर सकता है। सही ये है। सबको सामान्यतः सभी को इफेक्ट कर सकता है। तो बिल्कुल। साइबर सिक्योरिटी उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूं, हम्म। एक ऐसा वॉर एक्टिविटी है जी 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 जो एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में होना जरूरी है। जी जी जी। राइट। तो जैसे
हम मैरिटाइम ऑपरेशंस की बात जब पहले करते थे तो सिर्फ ये नेवी का काम हुआ करता था। हाँ, यस, पिछले एक दशक से आप देखेंगे कि एयरफोर्स की भागीदारी भी मैरिटाइम सिक्योरिटी में बहुत राइट, इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि आई है। जी तो जी ये जॉइंटमैनशिप है। जी ये जी किसी किसी कमी की वजह से इंटीग्रेशन और ये थिएटर कमांड की जो हम बात करते हैं उसकी वजह से नहीं है। जी जी भविष्य की चुनौतियां ही ऐसी हैं कि यस, ज्यादा इंटीग्रेशन होगा। जी 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 जी। पर रंजीत जी, अभी पहली बार देखने को मिला कि सीडीएस की नियुक्ति की जाई थी और उसमें पहले ही व्यक्ति अपने को बिपिन रावत देखने को मिले। तो अभी तक ऐसी जरूरत खड़ी नहीं हुई क्या कि जरूरत थी सीडीएस रखने की? सर, ऐसा हुआ जैसा कमांडर संदीप बता रहे थे। देखिए, पुराने समय में क्या होता था, जी, जैसे अपनी हमने भारत ने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। बिल्कुल, सारी लड़ाइयों में हमें कामयाबी मिली है, चाहे जी वो जी 71 की लड़ाई हो, 65, या अगर कारगिल को ही ले ले आप। जी जी जी, कारगिल में भी आर्मी और एयरफोर्स साथ साथ कार्रवाई कर रहे थे। यस, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, उस समय भी बिल्कुल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब एक साथ एक कार्रवाई साथ कर काम रहे कर थे, रहे सबने थे, जी अपना अपना कुछ किया। जी आगे जाते हुए ये बहुत जरूरी है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही नहीं, बट आपके जो स्पेस है जी जी, उसमें भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, हमारे जो हाँ, इंटेलिजेंस लाते हैं, और काफी कुछ है, काफी कुछ चल रहा है ग्राउंड पे भी। इसलिए ये जरूरत महसूस हुई कि जी एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो जी, इन सब चीजों को पहले से सोच के रखे। बराबर, वहां पे ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज वाला जो कंबाइंड ऑपरेशंस का थिएटर कमांड, ये जी, सब जो कॉन्सेप्ट है, ये नया नया आना शुरू हुआ, और इसलिए हुआ कि आगे की जरूरतों को, आगे के हालातों को देखते हुए हम जी, सीडीएस की नियुक्ति की गई, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी ये अब ये एक ऐसा पोस्ट बन गया है जो कि हमेशा आगे चलता रहेगा। यस। रणजीत जी, यहाँ पे 2 साल खत्म होने को आए थे बिपिन रावत को इस पोस्ट पे। अब मेरा सवाल ये कि 2 साल के समय में कितना आउटकम मिला है अपने को सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप देखें तो वो पहले सीडीएस थे, और जी सबसे पहले उनका जो काम था कि ये सेटअप करना कि सीडीएस की कार्रवाई क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, किस तरीके बिल्कुल, से वो तीनों सर्विसेज के साथ कार्रवाई करेंगे, करेंगे, और सही है, एक डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे, जो कि उन्होंने, हम सब जानते हैं, बहुत बखूबी से ये निभाया है। जी 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 और इसका चाहे वो आप इंस्टांसेस देखेंगे अभी, नेवी के जहाज लेह में और जेएनके में ऑपरेट कर रहे हैं, एयरफोर्स हर जगह ऑपरेट कर रही है, आर्मी आप देख ही रहे हैं, यस यस, काफी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत सारे आगे प्लान बन गए थे, आगे का जो रोड मैप है, किस तरीके से कार्रवाई, कब क्या होने वाला है, वो काफी, जी तो इसलिए काफी जो जॉइंटमैनशिप है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। आगे जो जो प्लान रोड मैप बना था, उसके हिसाब से जो जो अचीव करना था वो काफी अचीव हो गया है अभी। यस यस यस। अच्छा संदीप जी, मेरा सवाल ये भी है, टेक्निकल अभी एरर की मैंने बात करी, तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम दूसरी कंट्री से अगर ये एयरक्राफ्ट लेते हैं और भारत से भी बने हुए एयरक्राफ्ट का हम उपयोग करते हैं, आपको याद आ रहा है क्या ऐसा कि पास्ट में ऐसी अकस्मात के जो किस्से वो बने हुए हैं और इस अपने को नुकसान हुआ है सुरक्षा को? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत में बने हुए उपकरण या जी टेक्नोलॉजीज या कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स में कोई कमी है रही है, या जी उन कमियों की वजह से कोई दुर्घटनाएं ज्यादा हुई हैं। जी देखिए, मिलिट्री और फौज में दुर्घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। जी, वातावरण ही थोड़ा डेंजरस, माहौल ही डेंजरस रहता है। यस यस, जो हमारे हिंदुस्तानी उपकरण हैं वो किसी सिरे से, किसी बाहर की बनाई हुई चीज से कम नहीं है। जी, हाँ, हमें समय लगा है अपना ही उपकरण डिजाइन करने बनाने में के और लिए सही, मैन्युफैक्चर करने में, लेकिन बिल्कुल, अभी हम किसी और कंट्री से कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और जी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में मेरे ख्याल से तो हम किसी से कम है नहीं अभी। जी 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 जी। अच्छा तो ये संदीप नहीं जी, कह सकते कि, पायलट की कोई छोटी गलती हो सकती है क्या इसमें? अब लग रहा है आपको ऐसी कोई गुंजाइश लग रही है आपको? देखिए, संभवता हमेशा रहती है। जी, और इस पहलू को भी मेरे ख्याल से जो जांच हम्म एजेंसी है हम्म, इसको ध्यान से देखेगी। जी लेकिन मैं इस समय पर कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहता
हाँ यस। जिससे कि शंका की बात है, आपको मैं हाँ ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मुझे आशंकाएं पुष्टि ज्यादा करके बढ़े, दीजिए। लेकिन यस, नहीं ये सवाल इसलिए ये संदीप जी हो रहा नेचुरल है है क्योंकि कि ऐसी बातें कई होंगी। एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि भारत के जो पायलट्स होते हैं उनके ऊपर कोई शंका नहीं की जाती क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड होते हैं। जी, इसीलिए संदीप। आप कोई भी देश ले लीजिए, जी जी। एविएशन में एक्सीडेंट्स होते हैं, यस। पायलट्स के स्टैंडर्ड्स बहुत ही अव्वल और हाई रहते हैं, जी जी और जी। इनके पीरियोडिक सर्टिफिकेशन लाइसेंसेस वगैरह दोबारा जी। रिन्यू होते हैं, और पायलट को पायलट रहने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यस यस यस। लेकिन कभी कभी दुनिया में कुछ दुर्घटना हो जाती है, लेकिन वो दुर्घटना है, जी वो बिल्कुल। किसी एक चीज की कमी से शायद नहीं भी हो सकती, या अच्छा। कुछ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन हम्म। इस समय हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। सही बात है आपकी। अच्छा रंजीत जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि ये जो MI-17V5 है, ये ज्यादातर वीवीआईपी मूवमेंट के लिए अपनाया जाता है, यानी उपयोग में लिया जाता है। तो अगर बिपिन रावत को कहीं पे जा रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पहले से जांच करके नहीं रखा होगा या फिर ऐसी कोई तैयारी नहीं रखी होगी कि इसमें कोई फॉल्ट हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या लग रहा है आपको? सर, ये जो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर है, जैसा हम जी। पहले भी बात कर रहे थे, एक बहुत ही हम्म। प्रूवन प्लेटफॉर्म है, हम्म। और काफी उसमें अपग्रेड हुआ है। और ये जी। जो V5 इंडिया के पास है, वो जो लेटेस्ट मॉडल है उसका, वो हेलीकॉप्टर है। यस यस यस। उसका जो भी ये सीनियर वीवीआईपी मूवमेंट होती है, जी उसके जो भी एयरक्राफ्ट, जैसे आप डिफेंस के लिए देख लो, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी मशीन, जी हमेशा उसको मेंटेनेंस पूरी तरीके से किया जाता है, और कोशिश किया जाता है कि वो जितनी भी बेस्ट सर्विसिबिलिटी हो सकती है उसकी, उस पे रहे वो। जी 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 जी। बस जब ये वीवीआईपी फ्लाइट्स होते हैं, तो हाँ ऑफ यस। कोर्स वो थोड़ा एडिशनल चेक्स होते ही होते हैं, जी बेस्ट जी। पायलट्स होते हैं उनके लिए। जब ये मिशंस किए जा रहे होते हैं, सॉटी की जा रही होती है, तो मेरे ख्याल से आज की सॉटी में भी जो आई थिंक कमांडिंग ऑफिसर वगैरह थे, वो लोग थे, सीनियर ऑफिसर्स थे जो फ्लाइट क्रू में थे, और जहाज भी जो मेरे ख्याल से वो लेटेस्ट वाला जो है अपना, वो है। तो इसलिए अब क्या हो सकता है वो तो पता नहीं, बट हाँ, अपने तरफ से मेंटेनेंस वगैरह की कार्रवाई तो पूरी की गई होगी पक्का से। जी 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 जी। संदीप जी, क्या कोई ऐसी ये जो हेलीकॉप्टर की बात निकली है, तो सवाल ये रहता है कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हेलीकॉप्टर के अंदर हुई, तो उसमें बैठे हुए लोगों के पास कोई ऑप्शन रहता है, कोई विकल्प रहता है बचने के लिए, कुछ कर सके ऐसा? जी देखिए, सेफ्टी के विकल्प तो खैर होते ही हैं, जी। लेकिन हेलीकॉप्टर एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म है। हाँ यस। हाँ, आप ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से ये थोड़ा भिन्न है, जिसके जी पीछे से एक शटर खुल सकता है और लोग बिल्कुल। पैराशूट पहन के बाहर निकल एस्केप सकते कर हैं। सकते हैं। तो जी हेलीकॉप्टर में ऐसा अधिकतम नहीं होता है। बिल्कुल। तो लेकिन डिजाइन में सेफ्टीज रहती हैं, जी और जैसा कि मैंने कहा कि एविएशन या विमानन सेक्टर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकली एडवांस चीजें होती हैं ये, जी जी जी। और सेफ्टी का बखूबी ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन संदीप जी, कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे वजह क्या है? वो ब्लैक बॉक्स की जो बात हो रही है, क्या उसे सही मायनों में पता चल जाएगा? जी, ब्लैक बॉक्स के जो इनपुट्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जी वो जी जी। बताते हैं कि पायलट के क्या क्या एक्शन रहे थे बिल्कुल जी। क्रैश से पहले हम्म। या दुर्घटना घटने से पहले, क्या हम्म। क्या उनका कम्युनिकेशन एयर ट्रैफिक के साथ रहा होगा, यस और यस। उसमें से कुछ सुराग निकलते हैं। जी जी लेकिन जी। ये भी कहना शायद ठीक नहीं होगा कि सिर्फ यस। ब्लैक बॉक्स के इनपुट से पता चल। पूरा कारण ओके। निकल आएगा। खैर, नहीं वो रन। तो जो हमारे दुर्घटना की जो जांच होने वाली है, हाँ मेरे यस यस। ख्याल से वो इन सभी पहलुओं को नजर में रखते हुए अपना लेकिन रंजीत करेगी। जी, अगर ये बताया गया ऑफिशियल तौर पे कि ये टेक्निकल एरर थी इसके अंदर, लोग मानेंगे क्या? क्योंकि जिस तरह से इस हेलीकॉप्टर की सारी खूबियां दिखाने को मिल रही है अभी मीडिया के माध्यम से, तो क्या अगर ऐसा बताया जाएगा, समझो ऐसा कि ये टेक्निकल एरर थी, लोग भरोसा करेंगे? सर, हमें समझना ये होगा कि जी आजकल आप देखते होंगे, वैसे ये बराबर तो नहीं है, बट जी। गाड़ियां शोरूम से निकलती हैं बाहर और हाँ यस। खराब हो जाती हैं, वो जी नहीं जी कर बिल्कुल। पाती हैं कुछ भी। सो हाँ। मशीन का हम कुछ नहीं कह सकते,
जी जी मशीन जी। में कभी भी तकनीकी खराबी, बहुत से कारण होते हैं। हाँ, यस यस यस। मौसम का हो जाता है कुछ, एक एक छोटी सी चीज जो खराब होती है वो आगे की चीजों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और हम्म। वो छोटी चीज काफी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। जैसा कमांडर संदीप बता रहे थे कि हम्म। बहुत सारी चीजें हैं जो इकट्ठा होकर के अगर गड़बड़ करती हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी है जो इकट्ठा होकर के जब जांच हाँ, टीम यस। काम करती है जी जी तो जी। हमें पता चल सकता है। जैसे उसके जो डेटा रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है, ग्राउंड पे लोग रहे होंगे जिन्होंने हो सकता है देखा होगा हेलीकॉप्टर को लास्ट मोमेंट्स में क्या कर जी रहा जी था वो। जी। यस यस। एटीसी से बातचीत हो रही होगी, एटीसी से क्या बताया गया, कुछ वेदर के बारे में, वेदर रिपोर्ट क्या थी उधर की, काफी चीजें होंगी जो इकट्ठा होकर के फिर हाँ, यस यस। पता चल सकता है कि क्या जी कारण जी। नहीं, लेकिन फिर भी सवाल फिर से वही रहेगा संदीप जी, अगर इतनी खूबियां इस हेलीकॉप्टर में थी कि ये खराब मौसम में भी काम करता है, जैसे वीवीआईपी मूवमेंट के लिए काम करता है, ये सब कुछ बताया जा रहा है जिस तरह से, अगर ऐसा कल को बताया गया कि इसमें खराब मौसम भी जिम्मेवार था या फिर टेक्निकल एरर जिम्मेवार थी, तो लोग मानेंगे कितना? और दूसरा सवाल कि अगर किसी कोने से किसी ने ये बता दिया कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, तो उसको रोक थोड़ी पाएंगे अपने। जी देखिए, ये षड्यंत्र की आशंका तो हमेशा रहेगी, जी। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, हम्म। इस समय पर और खासकर इस जांच के दौरान हमें सहनशीलता और यस। अ, धीरज रखनी पड़ेगी। एवं धैर्य के साथ काम करना होगा, भावुक जी। होकर नहीं। सही बात है। और आशंका रहेगी, और मेरे ख्याल से लोगों को मानना चाहिए कि जो जांच जी कर रहे हैं वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, जी। और वे भी सच तक पहुंचना चाहते हैं और कुछ ओके। छुपाना नहीं चाहते। सही बात है देखिए, आपकी। हेलीकॉप्टर की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, हम्म। क्वालिटीज हैं, जी। इसमें ये दो राय नहीं है कि इनमें जी। कुछ कमी है। सही क्योंकि बात है। सिर्फ भारतीय सेना और वायुसेना अकेले ही नहीं है जो हम्म। इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी 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 रूस जी। में, बेलारूस में, अफ्रीका में, सब जगह पे अ, लगा है। चीन में बहुत सारे ऐसे एयर फोर्सेस हैं जो इसका इसका उपयोग किया इस्तेमाल जाता कर रही हैं। है। जी 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 जी। लेकिन जैसा कि मेजर रंजीत ने कहा, देखिए दुर्घटना किसी भी चीज में हो सकती है। सही बात है। स्पेसशिप क्रैश, ब्लास्ट हो जाते हैं, तो जी जी हम जी। क्या ये कह सकते हैं कि वो भी षड्यंत्र था। बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए? जी बड़े जी से जी बड़े जी। पानी के जहाज डूब जाते हैं, क्या हम सही कह बात है। सकते हैं कि ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, इनका होना असंभव है? वो नहीं कह सकते। हम्म। तो इस समय हम सबको भावुक हुए बगैर हाँ, यस। जांच एजेंसी की रिपोर्ट की और एयरफोर्स के स्टेटमेंट्स की, उन्हीं को नजर में रखना चाहिए, अच्छा, आप और दोनों से मेरा रूमर कॉमन सवाल नहीं। है संदीप जी और रंजीत जी, आप जी दोनों से कॉमन सवाल है मेरा, कि एक तो पहली बात कि जो भी आउटपुट आता है इसके अंदर, जो भी वजह आती है, वो स्पष्ट तौर पे बताया जाए और उसको तोड़ मरोड़ के बताया नहीं जाए, उसके लिए कितना सहमत हो, एक सवाल। और दूसरा, बिल्कुल। जैसे बिपिन रावत को हम श्रद्धांजलि देंगे, तो आपके शब्दों में किस तरह से आप दोगे? पहले संदीप जी, बाद में रणजीत जी। जी, श्रद्धांजलि मैं यही कहूंगा कि जो भारतीय सेनाओं का परिवर्तन हो रहा है, और जी ये अपने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए जी। एक तरह से जनरल रावत उसके आर्किटेक्ट रहे हैं, बिल्कुल। प्रमुख और प्रथम सेना के अधिकारी रहे हैं, जी और जी जी। उनकी निगरानी में ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाँ, यस। फोर्सेस और थिएटर कमांड्स हो रहा हो था। रहा है। बिल्कुल। और इसी एक चीज के लिए उन्हें हम याद रखेंगे, और जी हमें जी ये जी। भी याद रखना है कि शायद इनसे हम्म। ज्यादा पुरस्कार किसी को मिले ही नहीं। हाँ, बिल्कुल हाँ? सही बात है। यस, रणजीत उत्तम जी। युद्ध सेवा मेडल, बिल्कुल, यस, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं परम उनको। विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा जी जी मेडल, जी जी। विशिष्ट ये- सेवा मेडल, सेना मेडल, एडीसी। ओके, तो रणजीत जी शॉर्ट में। जी, रणजीत जी। जी दो आपके दो सवाल थे। जी सो जी जी। पहले पहले थे पहला था कि हमारे जांच के ऊपर क्या भरोसा रहेगा। हाँ, जांच यस यस यस। जांच का, जैसा मैं पहले भी बोल रहा था, बहुत सारी चीजें आई हैं, और आप देखो हमारे देश में हम्म। जांच की चीजें छुपाई नहीं जाती। जी जी जी, आप बिल्कुल। अभी आप देखेंगे जो 2019 में अपने जो एक्सीडेंट्स हुए थे हाँ, यस यस यस। उसके हेलीकॉप्टर पे, सभी बातें खुल करके सामने आई, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम छुपाते बिल्कुल। नहीं हैं ऐसे। सही बात है आपकी। इसलिए सही चीज सामने आ ही जाएगा जब जांच हाँ, पूरी यस। हो जाएगी। जी 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 और जी। दूसरा, हम कैसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जी। हमारे पहले सीडीएस, जैसे हाँ, कमांडर यस। ने बताया, पहले सीडीएस
हमें यकीन करना होगा कि जो दिशा उन्होंने दिखाई है उसके ऊपर हम चलते रहे। जी और एक हमें और चीज करना चाहिए कि हमें स्पेकुलेशन बहुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक कुछ जाने गई हैं। बहुत बिल्कुल। सारी फैमिलीज आज इन्वॉल्व हैं। ओके 13 फैमिलीज को बहुत जी ठोस पहुंची है, और एक फैमिली जी 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 अभी भी है जो कि ओके उसमें, इसलिए सही हमें बात है थोड़ा धीरज रखना होगा, ओके सहन रखना होगा। ઠીક છે, यहाँ पे સમય કમ પડ રહ્યા है। દર્શક મિત્રો, આપણે ચર્ચા જે કરી રહ્યા હતા એમાં ખાસ મહત્વની બાબત એટલા માટે નોંધવામાં આવી રહી છે કે સમગ્ર દેશની સુરક્ષાનો સવાલ જ્યારે ઉભો થતો હોય ત્યારે સુરક્ષાના જે હેડ કહેવાય એમનું મૃત્યુ થયું છે આ દુર્ઘટનાની અંદર, અને જે ખૂબ જ સક્ષમ કહેવાતું એવા હેલિકોપ્ટરની આ અકસ્માત જોવા મળી રહ્યો છે। અને એવામાં ત્રણ સેનાઓનું જે કોર્ડિનેશન કરવાની જવાબદારી પહેલીવાર આપવામાં આવી અને પહેલીવારમાં પહેલા વ્યક્તિ તરીકે આપણને બિપિન રાવત જોવા મળ્યા હતા। એમણે ઘણા બધા માપદંડો સેટ કર્યા છે અને એ માપદંડો પર આગળ એ કોર્ડિનેશન એ પ્રકારનું જ કરવામાં આવે તેવી આપણે આશા રાખીએ છીએ। સુરક્ષા પછી ભારત દેશના અંદરની હોય કે ભારત દેશની બોર્ડરની હોય એ વધારે ને વધારે મજબૂત બની શકે એ જ આપણે આશા અને પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ। ત્યારે બિપિન રાવતને પણ અમારા કાર્યક્રમ થકી અમે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી રહ્યા છે, કારણ કે બહુ સૌથી મોટું નુકસાન ભારત દેશની સિક્યુરિટી એટલે સુરક્ષા માટે જોવા મળી રહ્યું છે કે જેમાં બિપિન રાવતનું આ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ થયું છે। આ ચર્ચાને સમાપ્ત કરે છે। આ ચર્ચામાં આપ બંને ભાગ લીધો તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આપ દોનો કા શુક્રિયા। बहुत धन्यवाद। જી જી, તો દર્શક મિત્રો, ફરી મળીશું લોકમંચમાં એક નવી ચર્ચા કરવા માટે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।